Welcome friends, this is Current Affairs Funda and today I'll discuss a very important topic, that is newly appointments. Okay, so new appointments that are done in a 4:5 months. Okay, 4:5 months back I'll discuss all the appointments here. So basically I have distributed the appointment video in two forms, that is international as well as national appointments. Okay, so first of all I'll discuss national appointment and after that international appointments. Okay, so national appointments are that is 60 approx. Okay, and there are few also international appointments. Okay, so before going to our appointment session, first of all let's know about our channel. Basically we are delivering free education to all of you, and guys, keep share among your friends and share for those people who cannot afford the coaching classes and they are preparing for the home. And learning is priceless, so do at least. And if you need any specific video, then please do comment on our Facebook channel, that is facebook.com/current affairs funda. This is our Facebook channel, and do subscribe this one also. And guys, keep subscribe our YouTube channel, then you will be directly notified if I uploaded any new video. So now let's move for the appointment session, that is national wise. Okay, so I'll discuss national wise all the appointments in 4:5 months ago. Okay, so this video basically helps for the railway एंड LIC AOA के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड SSC. ओके, सो नाउ लेट्स मूव द अपॉइंटमेंट 1. ममता बिनानी is the president of the Institute of Company Secretaries of India, ICSI की जो प्रेसिडेंट बनाई गई हैं उनका नाम है ममता बिनानी. नेक्स्ट, Amitabh Bachchan and Priyanka Chopra are appointed as a Incredible India brand ambassadors. Amitabh Bachchan, that is legend, and Priyanka Chopra, also a legend. Both are the film industries level. They are appointed as a Incredible India brand ambassadors. Okay, they replaces Amir Khan. Basically आमिर खान के पास में 10 साल से ब्रांड एम्बेसडर थे इनक्रेडिबल इंडिया के, और अब उनको हटाकर अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है. नंबर 3, नोटेड इन्वायरमेंटलिस्ट रवि चेलम इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ग्रीन पीस इंडिया. ग्रीन पीस इंडिया आपको पता होगा एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको बनाया गया है? रवि चेलम को. ही सक्सीड्स समित एच. ओके, समित एच को इन्होंने रिप्लेस किया है. और नेक्स्ट, दैट इज अतुलेश जिंदल इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड टैक्सेस, दैट इज CBDT. CBDT के नए चेयरमैन कौन है? अतुलेश जिंदल जी. जिंदल बेसिकली किसको रिप्लेस किया है? AK जैन को. नंबर 5, अमित शाह इज री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द BJP पार्टी. BJP पार्टी के अमित शाह को फिर से इनको री इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया गया है. ओके, नंबर 6, appointment number 6, that is Alice Bedyan is the chairman and managing director of the General Insurance Corporation of India. Those students who are preparing for the LIC, this news is really very important. Mark as an asterisk over here. So this is important. Alice Bedyan ये चेयरमैन और MD हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, GIC. Number 7, Gurdeep Singh is the chairman and managing director, that is CMD of NTPC. NTPC लिमिटेड जो है कंपनी, ये PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है. इसके चेयरमैन और MD कौन है? गुरदीप सिंह जी. नंबर 8, जस्टिस संजय मिश्रा इज द लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश स्टेट जो राज्य है, इसके लोकायुक्त कौन बनाए गए हैं? जस्टिस संजय मिश्रा. नंबर 9, KK Jalan is the Secretary Ministry of Micro Small and Medium Enterprises MSME. जो हमारे यहाँ लघु उद्योग मंत्रालय होता है, उसके सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? KK जालान को. नंबर 10,
शोभना के पटनायक इज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है इसके सेक्रेटरी दैट मीन्स सचिव। Those guys who are preparing GA in Hindi, they can understand the meaning of secretary, that is सचिव। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जो फार्मर्स वेलफेयर के लिए काम करता है उसका सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? शोभना के पटनायक को। नंबर 11, अविनाश के श्रीवास्तव। अविनाश के श्रीवास्तव जो है वो सेक्रेटरी हैं कौन से मंत्रालय के? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी कौन है? अविनाश कुमार श्रीवास्तव। नंबर 12, विनोद अग्रवाल। विनोद अग्रवाल जो सेक्रेटरी हैं किस डिपार्टमेंट के? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। okay, so Ministry of Social Justice and Empowerment and Department of Empowerment of the Persons with Disabilities। जो भी लोग विकलांग है और सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है उसके सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं? विनोद अग्रवाल जी। नंबर 13, श्याम एस अग्रवाल इज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स आपको पता होगा, जो लोग बहुत ही पिछड़े डिपार्टमेंट के होते हैं, पिछली जाति के होते हैं, उनके लिए एक मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जो जंगल वगैरह में रहते हैं, ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति जिसको एक तरह से बोलते हैं, बहुत ही नीची जनजाति, पिछड़ी जनजाति जो है, जो अभी तक उभर कर आगे नहीं आई है, उसमें कैटेगराइज किया गया है। तो ट्राइबल अफेयर्स वो होता है और इसके सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? श्याम एस अग्रवाल को। नंबर 14 फ्रेंड्स, दैट इज GS दीपक इज द टेलीकॉम सेक्रेटरी। तो GS दीपक को टेलीकॉम सेक्रेटरी का, टेलीकॉम सेक्टर का सेक्रेटरी बनाया गया है, ठीक है। टेलीकॉम सेक्रेटरी कौन है? GS दीपक। नंबर 15 फ्रेंड्स, मुक्तेश कुमार पारदेशी जो हैं वो कौन है? इज द इंडियाज एम्बेसडर टू मैक्सिको। आपको पता होगा हर एक कंट्री में एम्बेसडर्स एंड हाई कमीशंस होते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ जो दिल्ली में बहुत सारी एम्बेसीज बनी हुई हैं, तो हर एक एम्बेसी में हर दूसरी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो उस एम्बेसी में जो एम्बेसडर्स होते हैं वो होते हैं और हाई कमीशंस होते हैं, ठीक है। तो मुक्तेश कुमार पारदेशाई जी को इंडिया की तरफ से एम्बेसडर बनाया गया है, कहाँ के लिए? मैक्सिको में। नंबर 16, कमलेश कुमार पांडे इज द चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो ये डिपार्टमेंट है चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। इसका किसको बनाया गया है? सेक्रेटरी। जो कमिश्नर बनाए गए हैं चीफ कमिश्नर, उनका नाम है कमलेश कुमार पांडे जी। तो ये चीफ कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर ऑफ फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के। नंबर 17, दत्ता पातसालकर इज़ द कमिश्नर ऑफ द पुलिस ऑफ मुंबई। तो मुंबई पुलिस के अभी नए कमिश्नर बनाए गए हैं जिनका नाम है दत्ता पातसालकर। ओके, ये मोस्ट सीनियर IPS ऑफिसर है इंडियन पुलिस सर्विस में। नंबर 18, आशीष शराफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एंड ऑफसेट इन एयरवेज ग्रुप, इसके चेयरमैन बनाए गए, ठीक है, आशीष शराफ जी। नंबर 19, बिन्नी बंसल इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के जो CEO हैं उनका नाम है बिन्नी बंसल जी। आपको पता होना चाहिए ये फ्लिपकार्ट जो है ये शॉपिंग में डील करती है, जो भी ऑनलाइन शॉपिंग होता है, ई-कॉमर्स, उसमें डील करती है। नंबर 20, R शिव कुमार इज़ द चेयरमैन ऑफ एसोचम कर्नाटका रीजन काउंसिल। जो एसोचम कर्नाटका रीजन काउंसिल है उसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है R शिव कुमारन, ठीक है। नाउ मूव फॉर द पॉइंट नंबर 21, दैट इज दिनेश शर्मा इज द 12-member बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। आपको पता होगा AIIB ये चाइना की एक बैंक है, और जैसे ही ब्रिक्स बैंक ओपन की गई थी और उसी के तर्ज पर ये बैंक भी बनाई गई है, और इसमें भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है। तो दिनेश शर्मा को 12 सदस्यीय जो बोर्ड है उसका डायरेक्टर बनाया गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ AIIB, या AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या AIIB में भी 12 सदस्यीय जो बोर्ड बनाया गया है उसके डायरेक्टर भारत की तरफ से कौन है, कौन प्रतिनिधित्व करेंगे? तो दैट इज़ द आंसर, दैट इज दिनेश शर्मा जी। नंबर 22,
रोस्टो रबनानन इज़ द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द माइंडट्री। आपको पता होगा माइंडट्री क्या है, एक IT कंपनी है जो टेस्टिंग में डील करती है। ठीक है, ये टेस्टिंग की कंपनी है और इसको हम बोल सकते हैं IT सॉल्यूशंस कंपनी, और सॉफ्टवेयर भी डेवलप करती है। और इसके जो CEO बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, रोस्टो रबनानन। ओके, नंबर 23, Guenter Butschek is the Chief Executive Officer and Managing Director of the टाटा मोटर्स ग्रुप। तो टाटा मोटर्स ग्रुप के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर MD एंड CEO दोनों सेम डिजिग्नेशन किसके पास में है, ग्विंटर बुट्सेक, ये इनका नाम है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर 24, DK होता कौन है, चीफ ऑफिसर है। ठीक है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिफेंस PSU दैट इज BEML लिमिटेड। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है BEML, और इसके CMD कौन है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ये है DK होता। नंबर 25 है शेखर सरन इज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। तो यहाँ के जो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है शेखर सरन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव फॉर द नंबर 26 है विप्रो के नए CEO अपॉइंट हुए हैं अबिदाली नीमूचवाला इज़ द न्यू CEO ऑफ द विप्रो आपको पता होगा एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो टॉप 3rd में आती है इंडिया में। आपको पता होगा पहले नंबर पर TCS आती है, दैट इज़ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सेकेंड पर आता है इन्फोसिस, एंड 3rd पोजीशन किसके पास में है, विप्रो के पास में। तो विप्रो ने अभी अपना टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज किया है, उसमें इन्होंने CEO किसको बनाया है, अबिदाली नीमूचवाला को। अतुल सोबती इज़ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आपको पता होगा वेल कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है एज अ CMD चीफ एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ये किसको बनाया गया, अतुल सोबती जी को बनाया गया है। So Atul Sopti is the chairman and managing director of Bharat Heavy Electricals Limited Wheel. Number 28 friends, Akshay Kothari is the country manager for the India LinkedIn. जो लिंक्डइन कंपनी है, लिंक्डइन आपको पता होगा प्रोफेशनल नेटवर्क्स है, जैसे फेसबुक है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का एक नेटवर्क है, ट्विटर क्या है मोनोब्लॉगिंग वेबसाइट्स का नेटवर्क है, मोनोब्लॉगिंग पर्सनालिटीज़ जो काफ़ी इनक्रेडिबल होती हैं और एमिनेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो ट्विटर पर अपना हैंडल बनाती हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करती हैं। वैसे ही लिंक्डइन पर सारे प्रोफेशनल्स अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, जॉब प्रोफाइल, रिज्यूमे प्रोफाइल्स। ओके, सो लिंक्डइन इंडिया का कंट्री मैनेजर किसको बनाया गया, अक्षय कोठारी जी को। सो कोठारी रिप्लेसेस बेसिकली निशांत राव को। नंबर 29 Sales is the Registrar General and Census Commissioner. This one is really important. Make a asterisk on this news. Sales is the Registrar General of the Census Commissioner. Number 30 Amitabh Kant is the Chief Executive Officer CEO of Niti Aayog. This one is really very important and most probably there are really very chances to come this question in your exams. So अमिताभ कांत को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO बनाया गया है नीति आयोग का। आपको पता होगा नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया था। और नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंट नंबर 31, दैट इज देवेंद्र कुमार सीकरी इज द चेयरमैन ऑफ फेयर ट्रेड रेगुलेटर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI के जो फेयर ट्रेड रेगुलेटर में चेयरमैन होते हैं वो किसको बनाया गया है, देवेंद्र कुमार जी को। नंबर 32 कुणाल शाह इज़ द चेयरमैन इंडस्ट्री बॉडी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI। तो आपको याद रखना है IAMAI की फुल फॉर्म क्या है। ओके फ्रेंड्स, सो IAMAI की फुल फॉर्म जो है वो है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नंबर 33 that is AB Khare is the chairman and managing director of the Madras Fertilizers के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है, AB खरे को। नंबर 34 डॉक्टर अच्युत समांता इज द जनरल प्रेसिडेंट ऑफ 105th इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ICSA। आपको पता होगा ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है
इसके जो जनरल प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो 105 नंबर का जो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन जो इन फ्यूचर होगा उसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। कौन है? डॉक्टर अच्युता समांता। नंबर 35 सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदे। इनका पूरा नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदे। दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी एडवाइज़र टू द उड़ीसा गवर्नमेंट। उड़ीसा गवर्नमेंट के तकनीकी विशेषज्ञ जिनको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी एडवाइज़र, उनका नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदे। नंबर 36 हेयर पवन कपूर इज़ द इंडियाज़ एम्बेसडर टू इसराइल। इसराइल कंट्री में जो एम्बेसडर्स बनाए गए हैं वो कौन है? पवन कपूर जी बनाए गए हैं। नंबर 37 फ्रेंड्स भानुमूर्ति BM इज़ द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO एंड द प्रेसिडेंट ऑफ विप्रो। देखिए विप्रो के जो CEO कौन बनाए गए हैं? भानुमूर्ति जी। ठीक है, तो आपको पता होना कि जो नीमुच वाला वो कौन है? CEO है, और COO कौन है? भानुमूर्ति BM। नंबर 38 डॉक्टर उर्जित R पटेल इज द डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI फॉर अ सेकेंड 3-year टर्म। आपको पता होगा डॉक्टर उर्जित R पटेल को जो डिप्टी गवर्नर अभी रिसेंटली थे उनको री अपॉइंट किया गया है। ठीक है, री अपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए, और वो दूसरी बार लगातार अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि RBI के पास में जो अभी कैसे कौन से गवर्नर हैं जो री अपॉइंटेड हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डॉक्टर उर्जित पटेल। नंबर 39 पवन कुमार अग्रवाल इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो उसके ऊपर FSSAI जो एक स्टैंडर्ड है जो फूड को ऑथेंटिकेट करता है कि ये वैलिड कैटेगरी का फूड है और ये मार्केट में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो FSAI जो इसको बोलते हैं एक डिपार्टमेंट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO कौन है? पवन कुमार अग्रवाल जी हैं। नंबर 40 फ्रेंड्स गौतम H बम्बावाला इज़ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान। जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उनमें जो भी हाई कमिश्नर हमारे न्यूली अपॉइंटेड हैं उनको आपको ज़रूर मेमोराइज़ करना है। तो पाकिस्तान में गौतम H बम्बावाला को हाई कमिश्नर बनाया गया है। नंबर 41 फरहान अख्तर इज़ द एम्बे इंडियाज़ ब्रांड एम्बेसडर टू प्रमोट न्यूट्रलाइट रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो न्यूट्रलाइज रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? फरहान अख्तर को बनाया है। ठीक है, नंबर 42 करण अदानी इज़ द CEO ऑफ द अदानी पोर्ट्स एंड SEZ APSEZ। देखिए SEZ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उसको हम SEZ बोलते हैं। बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते क्या हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होते हैं जहाँ का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है और गवर्नमेंट उन एरियाज़ पर सब्सिडी देती है कि आप यहाँ आके अपना प्लांट लगाइए, हम आपको टैक्सेशन में छूट देंगे, ज़मीन का लीज रेंट जो होगा उसमें आपको छूट देंगे। तो उनको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ न्यूली आती हैं। तो जैसे आपको पता होगा ये नोएडा जो है, नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। यहाँ पर बहुत सारी न्यूली इंडस्ट्रीज तब सेटअप हुई थी जब इस जोन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SEZ डिक्लेयर किया था। तो इट्स ऑल अबाउट द SEZ। तो अदानी पोर्ट्स एंड SEZ जिसको हम बोलते हैं APSEZ, इसके नए CEO कौन है? ये है करण अदानी। नंबर 43 डॉक्टर ज्ञानेंद्र B बेनगेयन इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर द गुड गवर्नेंस। जो जनरल जो ये है नेशनल सेंटर फॉर द गुड गवर्नेंस, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी। ठीक है, नंबर 44 जेफ विलियम्स इज़ द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CEO ऑफ द एप्पल इंक्लूसिव। आपको पता होगा एप्पल इंक्लूसिव जो है कंपनी है एप्पल, जिसके आईफोन्स बनते हैं, मैकबुक बनते हैं, US की कंपनी है। और इसके COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बनाए गए हैं? जेफ विलियम्स। नंबर 45 RK माथुर इज़ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ CIC। आपको पता होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जो भी आप RTI डालते हैं, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका लीगल राइट है। आप अगर RTI किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में डालते हैं कोई इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, तो उस डिपार्टमेंट को कौन संभालता है? चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर CIC। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
must write down this one. Number 46, रेवा खैत्रीपाल इज़ द दिल्लीज न्यू लोकायुक्त। आपको पता होगा दिल्ली की नई लोकायुक्त कौन है, उनका नाम है रेवा खैत्रीपाल। ये यूनियन टेरिटरी है दिल्ली की, दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी, तो आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि एज अ कैपिटल भी है। ओके, तो रेवा खैत्रीपाल जो है ये जस्टिस हैं, जस्टिस रेवा खैत्रीपाल, और ये दिल्ली की नई लोकायुक्त बनाई गई हैं। नंबर 47, ललित मोदी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। जो RCA है, आपको पता होगा ललित मोदी जिसने IPL के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ IPL में फ्रॉड किया था, इसके बाद से ये भाग गए दूसरे कंट्रीज़ में और यहाँ इंडिया से लापता है, और इनको ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सम्मन दिया है। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और काफ़ी पैसे लेकर ये इन्होंने गबन किया है, इसलिए ये यहाँ से गायब भी हैं। फिर भी इनको राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का बाइकॉट ये प्रेसिडेंट बनाए गए, इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था और ये ऐसे ही हो गए। तो 48 की बात करते हैं। अहमद जावेद इज़ द एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया में एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सीनियर IFS ऑफिसर, दैट इज़ अहमद जावेद। देखिए, जो दूसरी कंट्रीज़ में एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर बनाए जाते हैं वो हमेशा IFS मोस्ट प्रॉबली होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो डिपार्टमेंट होता है वही बंदा बनता है। ठीक है। नंबर 49, प्रकाश कुमार सिंह इज़ द चेयरमैन ऑफ सेल। ये आपको पता होगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU कंपनी है, और प्रकाश कुमार सिंह जो है वो चेयरमैन है। नंबर 50, कपिल चोपड़ा इज़ द चेयरमैन ऑफ बर्ड ट्रेवल एंड टूरिज़्म काउंसिल। जो हमारा बर्ड ट्रेवल एंड टूरिज़्म काउंसिल है उसके चेयरमैन कौन है? कपिल चोपड़ा जी। नंबर 51 फ्रेंड्स, उदय कुमार MD एंड CEO हैं किस डिपार्टमेंट के? मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, फॉर्मली MCX, जिसको हम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी बोलते हैं। MCX जो है ना, MCX को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी बोलते हैं और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। और इसके जो MD एंड CEO हैं ये उदय कुमार हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद होना चाहिए फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ बैंकिंग एग्जाम्स। 52, दैट इज संजीव शर्मा इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ABB इंडिया लिमिटेड। ABB इंडिया लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? जिनका नाम है संजीव शर्मा। नंबर 53, जस्टिस तीरथ सिंह TS ठाकुर। आपको पता होगा ये 43 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए थे। ठीक है, तो जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर जिनका नाम है TS ठाकुर, ये 43rd नंबर के CGI हैं, अभी प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं। नंबर 54, इंडियन अमेरिकन डॉक्टर विजय M राव, ये चेयरपर्सन है किस डिपार्टमेंट के? रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसको कहते हैं RSNA, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। आपको पता होगा RSNA की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ RSNA? तो RSNA की फुल फॉर्म है रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और इसके चेयरपर्सन कौन है? इंडियन अमेरिकन, ये भारतीय मूल के अमेरिकन हैं, डॉक्टर विजय M राव। नंबर 55 फ्रेंड्स, विजय कुमार चौधरी इज़ द स्पीकर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको पता है बिहार में CM कौन है? ये है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इज़ द CM, और वहाँ के डिप्टी जो ये हैं स्पीकर जो हैं वो हैं विजय कुमार चौधरी। तो विजय कुमार चौधरी इज़ द स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ फ्रेंड्स, नंबर 56 अपॉइंटमेंट, खैर खजेम इज़ द जनरल मोटर्स प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ऑपरेशंस। जो ये कंपनी है जनरल मोटर्स, और भारत में जो भी इसके ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए जो प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है उनका नाम क्या है? खैर खजेम। ओके, ये उनका नाम है, आपको याद रखना है। नंबर 57, सचिन तेंदुलकर इज़ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द डिसीज अवेयरनेस कैंपेन चेंजिंग डायबिटीज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इमिनेंट पर्सनालिटी है क्रिकेट फील्ड की, और अभी संन्यास ले चुके हैं। ये इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 100 शतक लगाए हैं दोनों फॉर्मेट में, ये वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में। तो सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है चेंजिंग डायबिटीज़ का। नंबर 58, पवन कपूर इज़ इंडियाज़ एम्बेसडर इज़राइल वेयर ही विल सक्सीड द जयदीप सरकार। तो इज़राइल के जो एम्बेसडर हैं कौन है? पवन कपूर, और उन्होंने जयदीप सरकार को रिप्लेस किया है। नंबर 59 फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश शर्मा इज़ 24th डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स DGBR। देखिए DGBR बेसिकली क्या है? डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स। तो इसके जनरल लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? ये हैं सुरेश शर्मा जी।
ठीक है। नंबर 60, आर के सिंह भदौड़िया इज द डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो जो एयर स्टाफ के डिप्टी चीफ कौन है? आर के सिंह भदौरिया। So guys, it's all about the appointments on the national wise, so don't miss the video, that is part 2. It will be international level appointments. So guys, how you will memorize this video? This is the trick for you. First of all, watch this video one time, and along with you need to write down all the newly appointments in your book. Okay, so guys, just revise 2 or 3 times your notes, then you will get the idea and you will memorize the name. One thing more, you can click those names in your exams. Okay, that's why I'm telling you, just thoroughly read out all these names. Okay, if you feel any kind of difficulty, then do comment. Okay, your suggestions always appreciated. Please comment on the our YouTube channel, and do share and do subscribe this YouTube channel. Okay, so friends, subscribe this right now and give a like on our video, and do comment and do share this video. If you feel any kind of difficulty, then do comment. If you have any suggestion regarding anything, then do comment. Thanks guys for watching this video. Have a nice day.